Yaps. It's in the name. So it seems like the Iran and Israel conflict is far from over, and there's just been some crazy footage to come out. You could see from here, from the plane's cockpit, from the window. It shows Iran's ballistic missiles heading towards Israel. Can you imagine just taking a flight? One, the views on this flight would be insane, but just seeing this off in the distance, like that's just, it's heartbreaking, man. But what does the CEO of secularism himself have to say about all of this? उठा उन्होंने YouTube पे ऑपरेशन सिंदूर का फुटेज देखा और उन्होंने सोचा बेसिकली ट्रंप की लैंग्वेज में समझाया जाए तो इजराइल ने ये किया। Abu Bakr al-Baghdadi is dead. इजराइल ने कहा कि उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने के बहुत पास आ चुका है और ईरान ने कई बार बोला है कि वो इजराइल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। यूएस ने भी टैसिटली इन स्ट्राइक्स को सपोर्ट किया है, जैसे कि आप ट्रंप के इस वीडियो से देख सकते हैं। Iran's going to have to negotiate a little bit tougher, meaning they're going to have to give us some things that they're not willing to give us right now. Well, I don't want to say imminent, but it looks like it's something that could very well happen. It's so crazy that this was like 6 months ago, and Trump was like, "Hey guys, if you're not going to come to the table, it's going to be imminent. It's going to be conflict. Not maybe conflict, because he never said that there would be conflict, but like looking at this as foreshadowing of like looking back at time." I want to have Insane. an agreement with Iran. We're fairly close to an agreement. They want an agreement. The guys who happen to be the ones who are fighting against the agreement, they're mostly dead now. And by mostly, I think it's just like the supreme leader right over there. I think he's the only one still alive. We are fairly close to a pretty good agreement. और इस समय पे ट्रंप ईरान को धमकियां भी दे रहा है और ईरान ने जो मिसाइल्स वापस फायर किए हैं इजराइल के ऊपर, उनको अमेरिका इस समय पे गिरा भी। The issue with Iran is no one really likes Iran. Two, they're threatening to bomb American bases, which is the only way that I would support America getting into this war. As of right now, I don't want us to get involved in another war. तो क्लियरली वो इसमें इजराइल को सपोर्ट दे रहे हैं। तो इस इशू के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या ये ईरान और इजराइल की जो फाइट है ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है, और इस लड़ाई में भारत को क्या करना चाहिए, भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, और अगर ये एक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में डेवलप हो जाता है आने वाले दिनों में तो भारत को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। हेलो शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो भाई 13 जून को इजराइल ने सुबह ये ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन, और ये नाम रैंडमली नहीं रखा गया है। इसका एक एक्चुअली काफी सरप्राइजिंग सिंबॉलिक मीनिंग है। लायन जो है ये एंशिएंट पर्शिया का एक सिंबल है, और जब शाह ऑफ ईरान पर राज किया करते थे तो उनके फ्लैग का भी ये सिंबल हुआ करता था। शाह ऑफ ईरान, याद कीजिए, इज द प्राइमरी ओपोनेंट टू द इस्लामिक डिक्टेटरशिप ऑफ ईरान। शाह को पावर से हटाया गया था 1979। It's crazy too, because up until, like, look at this in 1979, like, look at this woman. She's like not wearing one of those crazy like things that cover her head. Up until the 1970s, Iran was a place that was looking pretty progressive, right? And maybe Iraq is what I'm thinking of, but the Middle East was super not what it is now. But now that it's been taken over as Islamic country, it's literally a blueprint to see what will happen if you allow that to come in and take over. Not saying that it can't coexist. It really can't, but it really doesn't coexist when it becomes the majority belief, tradition, culture in your region. में आफ्टर द इस्लामिक रेवोल्यूशन। तो इस ऑपरेशन के बारे में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. उन्होंने कहा कि ये एक प्रीएम्प्टिव प्रिसाइज स्ट्राइक थी जो ईरान के अग्रेशन के खिलाफ इजराइल ने किया था। आईडीएफ के अकॉर्डिंग ये स्ट्राइक्स इंटेलिजेंस ड्रिवन, हाई प्रिसिजन और कंप्लीटली कोऑर्डिनेटेड थे। एंड if Iran did get a nuclear weapon, I do see that as a threat to the world, to the Western world, if you want to call it. I just think Iran would be the first country since us to use a nuclear weapon back from World War II. I feel like Iran, if they had the ability to, they would use it, and it is an existential threat. जेन्युइनली काफी सरप्राइजिंग है और काफी इंसेन है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने मेटिकुलसली इन स्ट्राइक्स को प्लान किया गया था। तो इन स्ट्राइक्स में ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और आईआरजीसी जो उनका
आर्म फोर्सेस है जिसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उनके लीडरशिप को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा टारगेट था नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, जहां पे ईरान यूरेनियम एनरिच कर रहा था, जो कि डायरेक्टली ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम से भी जुड़ा हुआ था। साथ ही इजराइल ने इन लोकेशंस पे भी अटैक किया है। खोंदाब और खुर्रामाबाद के न्यूक्लियर लैब्स, अराक हैवी वाटर रिएक्टर, परचीन के मिलिट्री रिसर्च सेंटर्स, तबरेज में एयर डिफेंस बैटरीज, और सबसे बड़ी स्ट्राइक थी तेहरान में IRGC के टॉप ऑफिसर्स के घरों पर। न्यूज से पता चला है कि IRGC के ऑलमोस्ट सारे टॉप कमांडर्स मार दिए गए हैं, जैसे कि हुसैन सलामी जो IRGC का चीफ था, मोहम्मद बघेरी जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ था, गुलाम अली राशिद और अली शामखानी। और इतनी प्रिसीजन से ये स्ट्राइक्स किए गए हैं कि अगर आप इन स्ट्राइक्स के फोटो देखेंगे तो ये जो IRGC के ऑफिशियल्स के अपार्टमेंट थे उनको हिट किया गया है, लेकिन उसके जो बगल वाले अपार्टमेंट है दे वर कंप्लीटली अनअफेक्टेड। इनफैक्ट अगर आप पिक्चर्स को देखेंगे तो बगल वाले अपार्टमेंट्स की खिड़कियां भी इंटैक्ट है और लाइट भी ऑन है। इतनी प्रिसीजन से हिट किया। 200 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ने पार्टिसिपेट किया था इस ऑपरेशन में एंड 330 That's how we're defining with precision. I mean, it is true that normally when the building gets bombed, the electricity goes out. Not in this case. Still blow your hair. 30+ बॉम्ब्स और मिसाइल्स ड्रॉप किए गए थे ऑन 100+ टारगेट्स। और इनकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी आप देखिए IDF की, कि इजराइल ने ईरान के ऑफिसर्स को एक कमांड बंकर में साइकोलॉजिकल टैक्टिक से फंसाया, उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया, उनकी सोच समझी कि भाई अगर हम यहाँ पर अटैक करेंगे तो ये सारे इनके ऑफिसर्स जो हैं ये इस बंकर में जाकर छुपेंगे, और फिर उसी बंकर पे उन्होंने स्ट्राइक करके उड़ा दिया, और साथ में ही कई सारे ऑफिसर्स को उड़ा दिया। मतलब जिस लेवल की This was in our last video where they did kill like 4 of the major officers. I mean, that was pretty 4D chess planning there to bomb the area, get all of them into one area, and then use a bunker buster and bunker buster that bunker. इंटेलिजेंस गैदरिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग चाहिए होती है ऐसे मिशन के लिए, वो लिटरली दिमाग हिला देने वाली है। एक इजरायली सिक्योरिटी सोर्स ने रिवील किया है कि मोसाद ने ईरान के अंदर ही एक सीक्रेट ड्रोन बेस क्रिएट करके रखा हुआ था, बताइए। और जैसे ही इजराइल ने ऑपरेशन लॉन्च किया उस समय पे इजराइल ने ईरान के अंदर जो उनका ड्रोन बेस था वहां से एक्सप्लोसिव ड्रोन्स लॉन्च किए जो तेहरान के पास के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट कर रहे थे, ताकि ईरान इजराइल के इस एयर अटैक के खिलाफ रिटेलिएट ही नहीं कर पाए। इसके पैरेलल मोसाद की कमांडो यूनिट ने सेंट्रल ईरान के अंदर की एयर डिफेंस सिस्टम्स के पास प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स डिप्लॉय किए, और जैसे ही सिस्टम्स हिट हुए इजरायली जेट्स के लिए पूरा रास्ता क्लियर हो गया। दिस वाज ए मास्टर क्लास इन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, स्टेल्थ, एस्पियोनाज एंड सर्जिकल प्रिसीजन। I don't think it was psychological warfare, not yet, but definitely with stealth and precision. Absolutely, Israel pulled off something crazy against Iran. But Iran is, I mean, equally done something as damaging to Israel in the sense that it's just, to me, they've done more psychological damage because they're just bombing the city. I mean, Israel's a tiny country, so like bases and cities are kind of interwoven together. So maybe they're trying to be precise, but it sure as hell doesn't look like it. इजराइल ने डिकैपिटेशन स्ट्राइक स्ट्रेटेजी यूज की है और डायरेक्टली उनकी न्यूक्लियर लीडरशिप को साफ किया है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट जैसे फेरेदून अब्बासी, मेहदी तेहरानची जो कि उनके नोटेबल फिजिसिस्ट हैं जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे, उसके साथ साथ 6 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा है। तो बेसिकली इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि आप कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, गधा पालिए, लेकिन यहूदियों से पंगा मत पालिए। तो नेतन्याहू ने इसके बाद एक अनाउंसमेंट किया है और कहा है कि ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक ईरान का जो भी न्यूक्लियर थ्रेट है उसको हम कंप्लीटली डिसमेंटल नहीं कर देते। This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. उसके रिस्पॉन्स में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी ने कहा है कि ये एक क्राइम है, इसका बदला लिया जाएगा और हम एक बिटर और पेनफुल रिटेलिएशन लेंगे इजराइल के खिलाफ। उसके बाद ईरान ने 100+ ड्रोन्स लॉन्च किए हैं इजराइल की तरफ वाया इराक एंड जॉर्डन रूट्स। मल्टीपल मिसाइल यूनिट्स को हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है और इजराइल के सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद कुछ मिसाइल्स जो है वो उस डिफेंस सिस्टम्स के थ्रू चली गई हैं और तेल अवीव में कुछ लोकेशंस को ईरान ने एक्चुअली हिट किया है। और इस पूरे ऑपरेशन से पूरे ग्लोबल शॉक वेव्स जनरेट हुए हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो 13% जंप हुआ है। ईरान न्यूक्लियर टॉक्स जो ओमान में हो रहे थे ऑलमोस्ट पूरी तरह से कोलैप्स हो I was expect the price of gas to go up just a little bit. चुके हैं। यूएस ने Apparently India is about to बोला है find कि भाई some हम इन्वॉल्व नहीं huge थे, oil लेकिन इस बात reserves पे out in the दुनिया को ocean. उतना ही भरोसा We'll होना see. चाहिए जितना भारत की ऑडियंस को था जब अक्षय कुमार ने बोला था कि हाउसफुल 5 विल बी द बेस्ट कॉमेडी मूवी ऑफ द ईयर। क्योंकि आप देखिए कि ये पहले से ही इजराइल को चढ़ा रहे हैं ईरान के खिलाफ। The Israeli attack was made because we are perceived as being weak and ineffective and with a really weak leader. But we're going to take care of Israel and they know that. Bibi called me yesterday, called me the day before.
We have a very good relationship. Israel wants peace. They really want peace. And I give this gentleman a great deal of credit. और इस समय पे जब इजराइल ने स्ट्राइक किया है, उस समय पे ट्रंप ट्रूथ सोशल पे जाके ईरान को ओपनली धमकियां दे रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू एक्सियोस, जिन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें 2 इजरायली ऑफिशियल्स ने बताया है कि ट्रंप और उनकी टीम पब्लिक में तो इजरायली अटैक का ऑपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में वो एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं इस अटैक को। बेसिकली अमेरिकन का असली गोल ये था कि ईरान को ये फील हो कि कोई अटैक नहीं होने वाला है, भाई हम तो निगोशिएट करने वाले हैं आपके साथ कल, ताकि जो ईरानियन टारगेट्स इजराइल की लिस्ट में थे वो अपनी लोकेशन ना बदलें या फिर बहुत ज्यादा प्रिपरेशन ना करें। और देखिए ऊपर से अमेरिका जो है इजराइल को डायरेक्टली कई सालों से फंड करता आ रहा है। I'm okay with America funding and backing this in this case. I just don't want to get directly involved unless somehow we get directly involved. यूएस की मिलिट्री एड इजराइल को अभी हर साल लगभग अराउंड $4 बिलियन मिलती है। हर साल $3.3 बिलियन इन एफएमएफ ग्रांट्स मिलते हैं इनको यूएस गवर्नमेंट से, यूएस का इक्विपमेंट खरीदने के लिए, और $500 मिलियन मिलते हैं जॉइंट मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम्स। तो जो स्टेटमेंट ट्रंप ने दिया है कि भाई हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये स्टेटमेंट उतना ही फेक है जितने फेक वो नंबर्स हैं जो राहुल गांधी इन्वेंट करते हैं। मध्य प्रदेश में 35 लाख बेरोजगार युवा हैं। जो एक्चुअल पैसा दिया गया है वो 26,570 करोड़ रुपए दिया। मैं तो सुन रहा हूँ कि ट्रंप ने राज शमानी के पॉडकास्ट में एक स्लॉट भी बुक किया है एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई उनको तो इस अटैक के बारे में पता ही नहीं था। तो अब सवाल उठता है कि भाई इजराइल ने क्यों अटैक किया ईरान पे और यही समय क्यों चूज किया है, क्यों अटैक किया? इज वेरी सिंपल। ईरान कई सालों से धमकी देता हुआ आ रहा है इजराइल को कि भाई हम इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, और इजराइल ने इस समय अटैक This is true. Iran has called for the utter annihilation of Israel, right? Like they don't want them to exist. ये किया है क्योंकि इजरायली मोसाद को और टॉप लीडरशिप को ये इंफॉर्मेशन मिली है अकॉर्डिंग टू इजराइल कि ईरान न्यूक्लियर ब्रेकआउट स्टेज तक पहुंच चुका है, यानी वो एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से कुछ हफ्ते या कुछ महीने ही दूर है। ऊपर से इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के पास यूरेनियम एनरिचमेंट इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो 9 न्यूक्लियर बॉम्ब तक डेवलप कर सकते हैं। They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. और इसलिए इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए हैं ताकि ईरान इन न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप ना कर सके और फिर उनसे इजराइल को ना टारगेट कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों ये इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाता है। उसके ऊपर से आप देखिए इजराइल के पास और भी रीजन है ईरान को टारगेट करने का, क्योंकि ईरान कई सालों से ओपनली इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों को फंडिंग और सपोर्ट देता आ रहा है, चाहे हिजबुल्ला हो, हमास हो, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जैसे आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनको पैसा, रॉकेट्स, ट्रेनिंग और लीडरशिप सपोर्ट मिलती आ रही है डायरेक्टली ईरान से। और भले ही ईरान डायरेक्टली अक्टूबर 7 के अटैक्स में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन गाजा में अक्टूबर 7 के बाद मिलने वाले मिसाइल डिब्री में मेड इन ईरान मार्किंग्स मिली है, और हमास ने जो वेपन्स यूज किए हैं वो भी ईरान में प्रोड्यूस हुए थे। ये क्लियर प्रूफ है ईरान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का अकॉर्डिंग टू इजरायली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। और अकॉर्डिंग टू इजरायली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, ईरान ऑफिशियल्स ने प्री प्लानिंग फेज में हमास लीडरशिप के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रखा हुआ था अक्टूबर 7 के अटैक्स के पहले, और अटैक्स के समय भी ईरान हमास के बीच में अपेरेंटली कांटेक्ट था। और ईरान प्रॉक्सी अटैक्स के अलावा डायरेक्ट अटैक्स भी कर चुका है, जैसे अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर 300 ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया था। फिर अक्टूबर 1 को फिर से ईरान ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, इस बार 200 रॉकेट्स मारे थे इजराइल। That's why people are going to look at Israel bombing Iran and they're going to be like, look, they started it, they provoked it, Iran deserves to retaliate. But if you go back in time, not even that long ago, 2024, early 2000s, like Iran's firing 200 missiles into Israel. Israel vows of retaliation at the right place and time. I mean, it seems like they're deciding it's now. पर इसके अलावा भी ईरान ने कई बड़े प्लान्स बना रखे हैं। ईरान ने पब्लिकली एक नया मिसाइल सिटी कंस्ट्रक्ट किया है जिसमें अंडरग्राउंड रखे हुए हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स फिर ईरान ने शोकेस भी किए हैं। अरे यार, इस तरह से पाकिस्तानियों को आइडियाज मत दो। देखिए, इस समय पे यूरोप स्मार्ट सिटीज बना रहा है, इंडिया गिफ्ट सिटी बना रहा है, अमेरिका के पास सिलिकॉन वैली है, और ईरान ने मिसाइल सिटी बनाई है। अब रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान भी एक भिखारी सिटी बना रहा है, जहां पर वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हिट करना चाहते हैं फॉर हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ भिखारीज इन वन एरिया। What's that?
ओ आई एम सॉरी, मुझे खबर आ रही है कि ये शहर उन्होंने ऑलरेडी डेवलप करके रखा हुआ है, उस शहर का नाम है इस्लामाबाद। तो देखिए अब सवाल आता है अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट का। तो जो स्टेटमेंट ट्रंप ने दिया है इजराइल की स्ट्राइक्स के बाद, उससे क्लियर हो जाता है कि चलिए भले ही अमेरिका ने डायरेक्टली इन स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन कुछ हद तक अमेरिका को प्रायर नॉलेज थी इन अटैक्स की, और शायद अमेरिका की ब्लेसिंग के साथ ये अटैक्स किए गए हैं। तो भैया सो मच फॉर ट्रंप बीइंग द एंटी वॉर प्रेसिडेंट। और जिस तरह से धमकियां दे रहा है ट्रंप ईरान को, उससे तो When he says anti-war president, I think he means like us starting other wars and us trying to do like regime changes in other countries. That's what I mean by that. You can't help what other people are going to do, right? लगता है कि ट्रंप ये जंग चाहता है, और ट्रंप ने पाकिस्तान के लेवल की पलटी मारी है। साल भर पाकिस्तान साला गजवाए हिंद की धमकी देता रहता है भारत को, और उसके बाद 6 घंटे में सरेंडर कर देता है। तो साल भर उसने बोला है कि हम युद्ध नहीं चाहते, युद्ध नहीं चाहते, और इस समय पे ट्रंप धमकी दे रहा है ईरान को कि भाई इस स्ट्राइक का अगर आपने रिटेलिएट किया तो यूएस और इजराइल मिलके और मारकाट मचाएगा, और ट्रंप को फिर से ये कहने का मौका मिलेगा। They did a lot of shooting and they did a lot of blasting, even Damn. not going through the front door. You know, you think you go through the door. और ऑलरेडी आप अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट देखिए कि वो इस समय पर इजराइल को, जो ईरान ने मिसाइल्स इजराइल की तरफ मारे हैं, उनको शूट डाउन करने में मदद कर रहा है। तो क्लियरली उनकी इन्वॉल्वमेंट अब तो हो चुकी है, और वो ओपनली इजराइल के साथ खड़े हैं। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर एसेट्स को डेवलप करने की कोशिश करता है या इजराइल के खिलाफ एस्केलेट करता है, तो यूएस डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन ईरान के खिलाफ लेगा। और यहाँ पर आती है सरप्राइजिंग बात, यहाँ पर आती है कहानी में ट्विस्ट। और आपको याद होगा कि ट्रंप कितना उछल उछल के सीज फायर करवाना चाहता था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कितना उछल उछल के वो क्रेडिट ले रहा था। After long talks of mediation between the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. You remember this? Congratulations to both countries on using common sense and greater intelligence. Thank you for your attention on this matter. मैंने सीज फायर करवा दिया। नूर खान बेस पे जैसे ही अटैक हुआ, तुरंत पाकिस्तान ने ट्रंप को फोन किया, उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया को फोन करके सरेंडर किया, और उसके बाद तुरंत ट्रंप ने इंडिया को फोन किया कि भाई बात मान लो इनकी। मुझे लगता है कि इसी वजह से पिछले कुछ हफ्तों से यूएस पाकिस्तान के साथ अपना स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की इतनी बातें कर रहा है। इतना प्यार अचानक से इनको इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि अमेरिका कुछ समय से प्लान कर रहा था कि भाई ईरान के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन होगा। इसलिए हो सकता है कि हमको पाकिस्तान के ये बेसिस इस्तेमाल करने पड़े अगर ईरान के साथ फुल ब्लोन कॉन्फ्रंटेशन होता है तो। और उनको शायद इस बात का डर था कि अगर इंडिया बहुत अग्रेसिवली ऑपरेशन सिंदूर में एक्ट करता है तो पाकिस्तान कहीं इन्हीं एयर बेसिस को मिट्टी में ना मिला दे। और याद कीजिए कुछ दिन पहले ही खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में जो नूर खान एयर बेस है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने उड़ा दिया था, वो एक्चुअली अमेरिकन कंट्रोल्ड एयरबेस है। और खबर तो यहां तक आती है कि इतना कंट्रोल है अमेरिकन का वहां पे कि कई हाई लेवल पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को वहां पे एंट्री भी नहीं मिलती है। कि नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है। उन ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पे उनकी निगरानी में है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए ट्रंप ने इंडिया को नूर खान बेस टारगेट होने के बाद फोन किया और बोला भाई 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 मेरा माल है, क्या कर रहे हो, मेरे माल को क्यों उड़ा रहे हो। अब देखिए बात करते हैं कि अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान में प्लानिंग क्या कर रहे हैं। देखिए देखने से तो ये लगता है, और नेतन्याहू और ट्रंप ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उससे भी ये लगता है कि वो ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं। इस्लामिक डिक्टेटरशिप जो है उसको हटाना चाहते हैं, और वहां पर शाह या कोई ऐसा लीडर बिठाना चाहते हैं जो यूएस की डिमांड्स के लिए ज्यादा ओबीडियंट हो। अगर देखिए ईरान में तख्ता पलट होता है that's what they would और want. वहां पर प्रो यूएस शाह रिजीम वापस आती है, तो याद रखिए कि उनकी लॉयल्टी ऑब्वियसली अमेरिका की तरफ हो। I think that would probably be a good thing. I would just rather see a regime change in there where they take Islam out and like allow for, I don't know, Hinduism or Christianity to reign supreme in the Middle East, but I just don't foresee that happening. होगी और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और उनके इंटरेस्ट की तरफ होगी। और ये जो रिजीम चेंज है, इंडिया में कुछ लोग हो सकता है खुश हो रहे हो कि अरे इस्लामिक रिजीम हट गई, बट दिस कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड। एक तरफ एक इस्लामिक कंट्री जो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रही थी, ये डेंजरस है, ईरान के आसपास के पूरे एरिया के लिए डेंजरस है, इंडिया के लिए डेंजरस है, पूरी दुनिया के लिए डेंजरस है। स्पेशली एक ऐसी रिजीम के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स जाना जहां बहुत सारे इस्लामिक रेडिकल्स भरे पड़े हों। लेकिन दूसरी तरफ अगर रिजीम चेंज हो सकता है, अगर रिजीम चेंज हो जाता है तो पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया के नेबरहुड में एक और प्रो यूएस पपेट रिजीम आकर खड़ी हो जाएगी। इससे यूएस को एक परफेक्ट कॉरिडोर मिल जाएगा चाइना को काउंटर करने के लिए सेंट्रल एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और मिडिल ईस्ट में। और सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश भी इस मूव को सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों भी ईरान के दो बड़े मेजर राइवल्स हैं मिडिल ईस्ट में। लेकिन भारत को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि यूएस ने बार बार इंडिया के इंटरनल मैटर्स में हाथ डाला है, इंडिया को बार बार ट्रिप करने की कोशिश की है, इंडिया के प्रोग्रेस में बार बार रोड़ा डालने की कोशिश की है, चाहे वो फार्मर्स
प्रोटेस्ट हो, राम मंदिर का डिसीजन हो, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो, या Like एंटी those, सीए got it. राइट्स हो, यूएस के डीप स्टेट ने, यूएस की मीडिया इकोसिस्टम ने बार बार एक नैरेटिव बनाकर पुश करने की कोशिश की है भारत के अगेंस्ट। चलिए Do I feel like the United States deep system, do I feel like the United States mainstream media, the people who work behind the scenes, who manipulate shit, went over and manipulated, elections, maybe gave money to create some opposition and some friction in some other countries? Yeah, I think that's probably true, and that's why most Americans are frustrated with the government, because that's our tax dollars, and we're like, we're not trying to fuck with those people, man. ये ट्रंप ने उतना नहीं किया था, लेकिन ट्रंप अपने सेकंड टर्म में तो उंगली कर रहा है ना भारत को। और ऊपर से आप देखिए ओपनली पाकिस्तान जैसे आतंकी स्टेट को ये लोग फंडिंग और सपोर्ट दे रहे हैं आज भी। तो जितना यूएस इंडिया को स्ट्रेटेजिक एलाई बोल के प्यार दिखाता है, उतना ही वो हर एक ऐसे देश को वीकेंड करता है। I think a partnership with India, with America, would be a beautiful thing for both countries. I think it would benefit both countries greatly. जो कभी फ्यूचर में अमेरिका का राइवल बन सकता है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ऑन द फ्लिप साइड आप देखिए ईरान की जो करंट इस्लामिक रिजीम है, उनके अपने आप में प्रॉब्लम्स हैं, अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और ऑब्वियसली इंडिया का स्टांस इस्लामिक आतंक के खिलाफ जाता है, और उस पॉइंट पे इंडिया क्लियरली इजराइल के साथ खड़ा है और खड़ा होना भी चाहिए। लेकिन याद रखिए कि करंट इस्लामिक रिजीम जो है, उन्हीं के साथ इंडिया ने इतना कोऑपरेट करके चाबहार पोर्ट डेवलप किया है, जिससे इंडिया को अफगानिस्तान का एक्सेस मिलता है और पूरे सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिलता है। चाबहार गुजरात के तट से कोचीन से ज़्यादा पास है। चाबहार में चूंकि नया बंदरगाह है, इसलिए वहाँ पे कोई वेटिंग टाइम भी नहीं होगा। Chabahar port, at least that part of the Chabahar port that we are Dr. involved in, Jayashekar. that will definitely see more investments. It will see more connectivity linkages coming out of that port. Establishing direct access to Afghanistan, Central Asia and the larger Eurasian region, effectively countering Pakistan's Gwadar port and China's Belt and Road Initiative. इस समय पे जो करंट ईरान की रिजीम है, वो भी काफी एंटी पाकिस्तान है, लेकिन वहां पर अगर अमेरिका की पपेट ईरानियन रिजीम आ जाती है, तो वो वही करेंगे जो अमेरिका चाहता है। और अमेरिका इस समय पे अपने एसेट्स और अपने बेसेस को जो उनके पाकिस्तान में है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है, और वो पाकिस्तान को अपने प्रॉक्सी वॉर्स और ऑपरेशंस के लिए सपोर्ट करना चाहता है और नर्चर करना चाहता है, ताकि वो चाइना को, रशिया को और इंडिया को कंटेन करके रख सके। तो इंडिया के लिए एक नया चैलेंज आ सकता है अगर वहां पर रिजीम चेंज होता है, तो कि भाई हम एक अमेरिकन पपेट रिजीम के साथ कैसे डील करेंगे, जो ओपनली पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट करेगा अमेरिका के बोलने पर। क्या चाबहार सर्वाइव करेगा या वहां पर भी अड़ंगा डाला जाएगा? और देखिए इस समय पर ये जो हालात हैं, तो उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। और देखिए ये जो अभी इस समय पर कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और इजराइल के बीच में, ये और एस्केलेट हो रही है। मैंने जैसा कि कहा, ईरान ने ऑलरेडी स्ट्राइक बैक किया है और कुछ एरियाज तेल अवीव में हिट हुए भी हैं, एंड इजराइल नाउ विल एस्केलेट एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। This is why it's hard to tell, like, and I'm just trying to be as non-biased as possible here. You're seeing a missile shoot up from here. Obviously, this is a city. So when you're looking at, like, Israel and Tel Aviv, there's going to be military complexes woven in and around the city. And also, if you're, I think every citizen, I don't think it's just men. I think it's men and women have to enroll and enlist in the IDF. So it's like it's kind of a military state in that regard. So like everybody in here is understanding what to do if the shit hits the fan, which maybe not be a terrible thing in practice. Like when you actually sit back and think about it, when you have an entire population who has at least some basic training, because they're not always going to be in the IDF. You know, once you get out, you probably get a little rusty. So you have a whole population of at least some level of training. Probably for compliance and cohesion, probably not a bad idea. Not that I would want that over here in the United States by any stretch of the means, or in India. इंडिया ने जो स्टैंड लिया है, आई थिंक वो काफी मैच्योर और प्रैग्मेटिक है। इंडिया ने बोला है कि देखिए इजराइल, आपको इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ानी है, जितना मारना है मारिए, लेकिन इनकी गवर्नमेंट मत टॉपल कीजिए। इंडिया इज डूइंग द स्मार्ट थिंग बाय सेइंग कि देखिए हम तो भाई पीस की चिंता करते हैं, हम आतंक के खिलाफ हैं, हम बस डीएस्केलेशन और पीस चाहते हैं। सेम चीज जो अमेरिका ने इंडिया को बोली थी। देखिए इंडिया क्लियरली इजराइल के साथ खड़ा है अगेंस्ट आतंक एंड एक्सट्रीमिज्म, लेकिन इंडिया की ईरान के साथ भी रिलेशनशिप है। I think everyone's against that. I think everyone's against the Islam and the extremism in the country. The people there are fine, but the radicals not so much. एक सच है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होती है
तो सिचुएशन और डिटीरियोरेट कर सकती है। ऑयल सप्लाई पे इमीडिएट झटका पड़ेगा, तो इंडिया को उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिया को देखना पड़ेगा कि अगर चाइना इन्वॉल्व होता है कि नहीं, और क्या होता है कि अगर सही मायने में ईरान में एक रेजिम चेंज आता है तो। लेकिन अल्टीमेटली जो ईरान में हो रहा है और जिस तरह अमेरिका इस समय एक्ट कर रहा है, वो एक और बहुत स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है इंडिया के लिए। एंड दिस शुड बी द टेक अवे ऑफ दिस वीडियो कि बॉस, इंडिया को कम से कम चाइना जितना स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे इंडिया को खुद को इतना पावरफुल और इंडिस्पेंसिबल बनाना होगा कि पूरी दुनिया डरे आपसे पंगा लेने से पहले। बिल्कुल वैसे ही जैसे Peace through strength. You want to walk quietly, but you want to walk with a big stick. चाइना के साथ आज कोई पंगा नहीं लेता। इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वो लोग ऐसे लेवल पे हैं कि दुनिया को उनकी रिस्पेक्ट करनी ही पड़ती है, चाहे दुनिया उनको कितना ही हेट करे। हमेशा एक लाइन याद रखिएगा जो 2500 साल पहले थुसिडिडीज ने ग्रीस में बोली थी, द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट। कि भाई जो ताकतवर है उसी की Oh, I love that. स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट। The strong do what they can and the weak suffer what they must. भाई जो Ooh, ताकतवर है उसी की चलती है और जो powerful. कमजोर है उसको ताकतवर की ही सुननी पड़ती है। ये कहावत 2500 साल पहले बोली गई थी, लेकिन आज भी रेलेवेंट है। पूरी दुनिया में सिर्फ दो चीजें मैटर करती हैं, पावर एंड स्ट्रेंथ। जिसके पास ये है वो सेफ है, वो सक्सेसफुल है। भारत में भी 2500 साल पहले कौटिल्य ने भी यही कहा था, हर एक देश का अल्टीमेट गोल होना चाहिए पावर अक्वायर करना। उन्होंने कहा था पावर मींस स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इज द बेस्ट वे टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड। कल्चर बड़ी अच्छी चीज है, सॉफ्ट पावर बड़ी अच्छी Strength is the best way to influence peace, absolutely. चीज है, इंटेलेक्चुअलिज्म बड़ी अच्छी चीज है ये। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ तब तक यूजफुल है जब तक आपके पास सॉलिड हार्ड पावर हो। बिना हार्ड पावर के true. ये सब बकवास है। That's true. अमेरिका हो, चाइना हो, इजराइल हो, इन सब ने प्रूफ दिया है दुनिया को कि अगर दुनिया में सही मायने में इन्फ्लुएंस रखना है तो उसका एक ही तरीका है, हार्ड पावर। कौटिल्य ने कहा था 2500 साल पहले कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन आखिर में दुनिया हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री के सामने ही झुकेगी। और ये बात हम इंडियंस को समझनी पड़ेगी, Which दिल makes में sense. दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि आप You don't need to overthink it. For sure, the strongest country is going to have the most influence, and you can influence peace once more through strength. फोकस कीजिए अगले 10 सालों में अपनी इकोनॉमी को 10 से 15 ट्रिलियन तक ले जाने का। डिफेंस इंडिजनाइजेशन पे फुल फोकस कीजिए, अपने इंजन बनाइए, अपने ड्रोन्स, मिसाइल्स और वेपन्स टेक डेवलप कीजिए। डिफेंस स्पेंडिंग को जीडीपी का सिर्फ 2% नहीं बल्कि बढ़ाकर 4 से 5% तक ले जाइए। और पॉलिटिकली स्टेबल रहिए कम से कम 2035 तक, जब तक हम 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं बन जाते। जब हम वहां पर पहुंच गए तो पूरी दुनिया ऑटोमेटिकली आपको सीरियसली लेगी, चाहे आपको जितना ही हेट करे, चाहे आपको जितनी गालियां दे, पर आपसे पंगा कभी नहीं लेगी। और Beautiful एक बात backdrop. और, जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। सोशल मीडिया पे हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स रो रहे हैं कि अरे इंडिया तो अकेला हो गया, इंडिया को कोई Has anyone really stopped to think about, like, World War II was probably the last, well, maybe the war in Afghanistan or Iraq was the last, like, major war that we've seen, besides the ones happening right now. And it's crazy to think, like, the war in Russia and Ukraine, Israel and Iran, India and Pakistan when that was going on. It's all on the internet. You're seeing shit in real time. Soldiers who are just me and you, the grunt workers out there with their phones, were like, yo, check the shit out of this. Like, we're going to have to go in and break this house. And we're basically live streaming a breach. You know, we're seeing the POV of the drones flying in. Like, has anyone sat back to think about how crazy of a time it is? सपोर्ट नहीं We're करता। experiencing इंडिया का war कोई in दोस्त real नहीं है। time. और पाकिस्तान कोई देख लो, यूएस, चाइना, टर्की सब उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो तो यार पॉन है, उनका काम है कंट्रोल होना। वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटी कमजोर टर्शरी पावर है जो सिर्फ बड़े देशों के लिए एक यूजफुल इडियट का काम कर सकते हैं। तो इंडिया का गोल I mean, that's पाकिस्तान बनना true. नहीं है, इंडिया का गोल है चाइना और अमेरिका के लेवल का पावर बनना। उन दोनों देशों को देखिए, पाकिस्तान को मत देखिए। क्या चाइना और अमेरिका जाके रो रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता? अबे नहीं यार, अमेरिका के पास कौन सा फ्रेंड है, चाइना के पास कौन सा फ्रेंड है? ये दोनों देश दूसरे देशों को टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, कॉन्डम की तरह इस्तेमाल करते हैं। इन देशों को फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, इनको यूटिलिटी चाहिए। इंडिया को यही बात समझनी पड़ेगी। सुपर पावर्स डोंट हैव फ्रेंड्स, दे हैव एम्पायर्स। और एम्पायर्स का दुनिया के साथ सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है। It's not about having friends. I mean, it is about having friends, but in this case, in empires, it's about having strategic partners. It's having alliances, and then having trust. Trust is a word, a 5-letter word. I haven't heard him bring up, especially in talks between these, empires.
but alliances and trust is what fuels इसलिए that. इंडिया को भी हर रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल बनाना पड़ेगा. हमारा कोई ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है, कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है. ये सब बेटा कॉन्सेप्ट्स हैं यार. दिस इज बेटा बिहेवियर. आपको बेटा बनना है, इंडिया को एक बेटा देश बनाना है. अगर विश्व गुरु बनना है, अगर अमेरिका के लेवल का वर्ल्ड पावर बनना है, तो दुनिया को इमोशनली नहीं देखना, दुनिया को ट्रांजैक्शनली देखना पड़ेगा. आज इंडिया के फ्रांस, ईरान, इजराइल, रशिया, यूएसए, सऊदी के साथ पॉजिटिव ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स हैं. अगर इंडिया के बस की कुछ नहीं होती, गरीब देश होता, तो इनमें से कोई भी देश हमारी तरफ नहीं देख रहा होता. आज जब अमेरिका अपने इंटरेस्ट में कुछ कर रहा है, well, it's also impossible to be friends because America isn't a person or a thing. It's a large, group of people, very complex. Same thing with India. India isn't a person or it is a place, but it's not like a singular place destination I can go to. So it's impossible to be friends. But you can have strategic alliances and once more trust to build a nice bridge. That way both places can have entertainment, economy, creativity, tradition, culture, be things of products that can go back and forth. इंडिया का इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है तो रो मत, कंप्लेन मत करो, समझो कि ये क्या है. दिस इज जस्ट अ ट्रांजैक्शन. और ऐसे ट्रांजैक्शन में खुद को इतना पावरफुल बनाना है कि नेक्स्ट टाइम अमेरिका भी सोच समझ के काम करे कि भाई हम इंडिया के साथ पंगा नहीं लेना चाहते. दुनिया का यही रूल है. यही हमको 2500 साल पहले कौटिल्य ने समझाया था. यही हमको 2500 साल पहले थुसिडिड ने समझाया था. और यही लेसन हम इंडियंस को समझना पड़ेगा. कल्टिवेट पावर, कल्टिवेट हार्ड पावर. जब हम 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे, तब अपने आप पूरी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगी. Yeah, but I think the only way you get to an economy like that is by having strategic partners and having good relationships. And what's more, you guys have seen me for a while now. I believe this. I think America and India's relationship is going to be a beautiful thing. Like if it's JJK, America is red and India is purple or blue. Together, we create hollow purple. And that's a hell of a move. That's some straight power right there. And I believe that can help. Like in pragmatic terms, why do I think they can help? One, give America a new distribution center instead of just having to rely on China. India's already the pharmaceutical hub of the world, and I know you guys are working on your automotive centers, your infrastructural centers, your overall manufacturing and distribution centers. So logistically, it would be closer to America. Plus, we could work with is it the United Arab? No, I think it's Saudi Arabia has the corridor, the West Corridor, to allow for better. Once more logistically making these transports of goods even faster, more efficient, maybe even more cost effective. So I think all of the things, once more, it all comes down to money at the end of the day. And I believe if we can do that with India, we have buying all that stuff. Well, guess what? We're paying India, and India can grow its economy, thus growing its infrastructure, working on its civic sense within its culture. Culture is a harsh word, but in its region, you know what I mean? Like, people are dying in trains because they're overflooding in train stations. Like, that can't go. I've already done a video on that, but I'm gonna quit my yapping. I hope you guys appreciate this. I don't know how much more on this topic I'm going to cover. I'll probably cover a few more things, but until we get major updates, I don't really want to milk this war for views because I feel like that's kind of scummy. So I'm going to sprinkle in some other things. But if we get more updates, of course, I'm going to keep you guys updated as well. So with that said, spread love, spread joy, put a smile on someone's face today, and I'll see you guys in the next one. Peace.